Topic relative cell reference and absolute cell reference. So relative cell reference is one that when copy from one position to another position in a worksheet will change the cell address automatically to suit the position. Automatically वो cell की value change हो जाएगी. For example, if the formula is A3 equals to A1 plus A2, then you copy the formula from A3 to B3. Excel automatically changes the reference to the match location cell B1, B3. This is the default in Excel. मैं example explain करता हूँ. For example, here I am writing it equals to sum function. I am performing it. Simple bracket start, give to location and ending it. When I sum it, when I press enter, it will sum it 1400. That means cell reference is B D30 and E30. ये cell reference है. Now when I will copy it, जब मैं इसको copy करता हूँ तो just I am dragging it. आप इस तरह से drag कर सकते हो. Now just see it. Sum D1 E3 D3 E3, sum D3 E1 E31, sum D2 E32, sum D3 E3. ये as it is copy हो गया. Now as it is copied, no changes, nothing. That means both the cell will change it, starting cell and ending cell. Both the cell will change it. That is called relative reference. ये relative reference कहलाता है, जिसमें आप कॉपी करते हो फार्मूला की, सेल की, अदर रेफरेंस की, ये सारी चीजों की. Now the thing is that same case absolute reference का आता है. Absolute reference is something different. हम उसको चेक करते हैं और देखते हैं. So absolute reference, to make absolute reference of a formula, an example of reference, absolute reference, let us take example of initiative rate. Dollar sign we put it, shortcut F4, $A or $1 plus $A, $2 is an example of absolute reference. इसको हम अगर ऐसा बोलें कि the address of a cell is made up by putting a dollar sign before both the column and row number. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, if a formula is copied to a different location, if a formula is copied to a different location, the absolute reference remains the same. Put a dollar sign, put a dollar sign on column and row और कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं. अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूं आपको. सिंपल मैंने यहां जो बताया, यही मैं आपको ये रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल दिया, रिलेटिव सेल रेफरेंस. अब मैं आपको यहां एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जांपल बताता हूं. रैप टेक्स्ट कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, फॉन्ट साइज बिगर कर दी 14, और आप जब इसको देखेंगे तो ये भी मैंने
तो आपको एक जैसा लगेगा ये, जस्ट सी इट। नाउ द थिंग इज सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, लिसन वेरी केयरफुली, वी वांट टू परफॉर्म, इसका हम 10% निकाल रहे हैं, इसका 10%। तो अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस हम यहां नहीं लेते हुए, हम यहां लेंगे, यहां पे रिलेटिव ही रहेगा। बताता हूं कैसे, हाउ वी परफॉर्म इट। जस्ट सी इट इक्वल्स टू इसका 10%, इंटर। अब 200 का 10% 20, क्लियर, इट इज राइट, you are a maths student, you know it very well. अब now I copy it, I am copying the thing. Now the thing is that here error comes, here it is different thing, here is different thing. अब परफॉर्म कैसे होना था, this cell into 10 upon 100, तो ये आ गया, this cell into 10 upon 100, तो ये आया। अब इसका आप देखो फार्मूला क्या चेंज हुआ, यहां जो फार्मूला था, द फार्मूला इज 10E30 1030E28, here the formula is changes D31, ठीक है, D31 is fine, but here the cell reference is 10%, that means E28 ही रहना थी। now the cell is changed E29, this cell, so that's why it will generate the error, ये एरर आई। फिर अब इसमें देखें हम, मतलब हमको होना ये था कि D31 into E28, यहां पर क्या फार्मूला था, D30 into E28, यहां पर होना था D31 into E28, सेम यहां भी यही होना था। अब यहां क्या हुआ, D32 into E30, D32 ये तो सही है, पर into E30, E30 ये हो गया, तो दिस विल रॉन्ग। भाई आप 300 का 10% निकालोगे तो 30 आना चाहिए, तो वो उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। सेम थिंग D33 into E28 होना था, बट वो उसका आंसर E31, तो इट विल टेक मल्टीप्लाई। So that is called relative reference. Relative reference will copy it accordingly. वो उसकी वैल्यू कॉपी कर देता है। अब हम यहां समझते हैं वही की वही चीज, जस्ट सी वेरी केयरफुली, इसकी वैल्यू तो इक्वल्स, पुट इट इक्वल साइंस, ये इनटू 10%। अब 10% जब आप रख रहे हो तो मैंने F4 प्रेस करा, आई हैव प्रेस F4। F4 में क्या होता है, डॉलर, पुट इट डॉलर साइन बिफोर दैट एंड पुट इट डॉलर साइन फॉर 28। E stands for column, 28 stands for row, E stands for column, 28 stands for row। तो रो और कॉलम फ्रीज होगा, फ्रीज होगा मतलब द वैल्यू विल नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला। जब इस फॉर्मूले को आप कॉपी करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वैल्यू चेंज नहीं होगी तो जब हम एंटर करते हैं तो इसका 10%, ये तो करेक्ट है, बोले आपका ये और ये, व्हेन यू कॉपी इट, तो अब D31 into E28 वही होना चाहिए। अब आप कॉपी करो, देखो सेम, इसका फॉर्मूला D30E28, नाउ D31E28, ये सेल सही हुई, E28 फिक्स हो गई। व्हेन यू वांट टू फिक्स द सेल row wise as well as column wise, that time you can put a dollar sign and value will not change accordingly when you copy the formula। जब आप फॉर्मूले को कॉपी करते हो तो सेल की रेफरेंस चेंज नहीं होगी। अब यहां भी चेंज नहीं हुई, E28 फिक्स हो गई, और आप देखो हर उसका 10% निकला, 200 का 10% 20, 10 का 10, 100 का 10% 10, 300 का 10% 30, 200 250 का 10% 25। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जब आप दोनों जगह डॉलर साइन यूज करते हो, डॉलर साइन, जैसे ये अब अपन ने यहां लिया, इसी सेल को रेफरेंस लें, तो डॉलर ई डॉलर 28, अब ये इसको कॉलम और रो दोनों चेंज होंगे, है ना। अब अगर आपने ई डॉलर
और 28 लिखा, तो रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी, इसमें रो चेंज नहीं होगी, रो नॉट चेंज। और इसमें रो और कॉलम नॉट चेंज। फिर डॉलर ई 28, कॉलम नॉट चेंज, कॉलम चेंज नहीं होगा। मतलब मैंने आपको फिक्स तरीका बता दिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इट कैन बी प्रीसीड द कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस और बोथ। प्रीसीड मतलब पहले आप कहीं भी लगा सकते हो, और मैंने आपको ये इसका एग्जाम्पल भी बताया, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से एग्जाम्पल बताया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस आप इस पे देख पा रहे हैं, तो एक ही उस पे दिख रही है। नाउ इन ए सिंगल स्क्रीन जस्ट सी इट, ये सिंगल स्क्रीन